सत श्री अकाल दोस्तों, मैं सोनू राम एक बार फिर तो ਤੁਹਾਡਾ स्वागत करता केवी क्लासेस ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਜੀਕੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਚਟੈਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਚਿਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਦੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਆਈ ਸੀ ਸਰ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ ਆ ਪਾਰਟ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਚਟੈਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਚਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ 10 ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਜੀਕੇ ਆਏਗੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 10 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਨੀਮਮ 8 ਨੰਬਰ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ केवी क्लासेस ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ केवी क्लासेस ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਇਹਨੂੰ ਜਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਚਟੈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 2 ਤੇ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਦੋਸਤੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਜੀਕੇ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ ਕਦੋਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਮੈਪ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਟੇਟ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ, ਉਹ 22 ਦੇ 22 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਪ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਜੀਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਥੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਮੈਪ ਆਪਦੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜੀਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ ਕਦੋਂ ਸੀਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ ਕਦੋਂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ। ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ? 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ ਸੀ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ? ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਜੀ? 7 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੀਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੀਗੇ ਜੀ? 7 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੀਗੇ, 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਘਰ ਜੇਕੇ में। ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ? ਘਰ ਜੇਕੇ में। ਤਾਂ ਘਰ ਜੇਕੇ में मतलब ਜੀ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਪਾਂ? ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਦੋਸਤੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? ਯੂਪੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਰਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਤੇ ਇਧਰ ਨੌਕਰ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ਉੱਤਰਾਖੰਡ। ਕਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੱਗਦਾ? ਉਹ ਸੌਰੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਉੱਤਰਾਖੰਡ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੌਂਗੈਸਟ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਸੌਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਲੌਂਗੈਸਟ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ ਜੀ? 1262 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਸੀਮਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ? 1262 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਉਂਡਰੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ? 11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਇੰਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਇੰਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਇੰਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਇੰਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਟਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਲਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੀ ਲੈਂਥ ਪੁੱਛਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? 320 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? 320 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ
पास कर दी है। कितने डिस्ट्रिक्ट सीगे जी? 6 डिस्ट्रिक्ट। एक थे यमुनानगर, 2 थे करनाल, 3 थे पानीपत, 4 थे सोनीपत, 5 थे फरीदाबाद ते 6 थे पलवल। डिस्ट्रिक्ट पुछले किहड़े डिस्ट्रिक्ट विच इंटर करदी है? यमुनानगर। किहड़े डिस्ट्रिक्ट दे विचों बाहर निकलदी है यमुना, वापस यूपी दे विच चली जाती है, तां किहड़ा सीगा जी? पलवल। विलेज पुछले किहड़े विलेज दे विच या इत्थे बांध दी आपां गल कीती सी तां 2 बांध आपां कीते सीगे, ताजेवाला बांध अते हथनीकुंड बांध। हथनीकुंड बांध। ताजेवाला बांध कदों बनिया सीगा जी? तां 1873 दे विच बनिया सीगा ते हथनीकुंड बांध मतलब उसे बांध नूं रीकंस्ट्रक्ट कीता सीगा, दोबारा तो बनाया गया सीगा 1999 दे विच। तां हथनीकुंड बांध अते ताजेवाला बांध पुछले कित्थे ने जी? तां किहड़े डिस्ट्रिक्ट दे विच है जी? यमुनानगर दे विच ने। तां यमुना नदी एग्जिट किहड़े डिस्ट्रिक्ट दे विचों करदी है? वापस यूपी दे विच चली जाती है। तां डिस्ट्रिक्ट पुछले तां पलवल है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਡੀਪ ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਏਗਾ ਤਾਂ ਡੀਪ ਚ क्वेश्चन ਬਣਦਾ जी पिंड ਪੁੱਛ ਲਈ ਤਾਂ पिंड ਕਿਹੜਾ जी? हसनपुर विलेज। गांव कौन सा है जी? हसनपुर गांव है। यहाँ पे 2 चीजें रह गई थी, हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜੀ ਕੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਜੀ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। तो चलो जी मिक्स जी ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ क्योंकि यहाँ पे 2 यूटी की बात करते हैं हम। एक यूटी को लगता है जी दिल्ली, यहाँ पे कौन सा यूटी है? दिल्ली या दिल्ली। और ऊपर कौन सा है जी? चंडीगढ़। कौन सा है? चंडीगढ़। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है चंडीगढ़ वाले में से। चंडीगढ़, जहां पे चंडीगढ़ यूटी आ गई है और पंजाब का मोहाली। चंडीगढ़, मोहाली और हरियाणा का कौन सा डिस्ट्रिक्ट जी? पंचकुला। पंचकुला। जहां पे ये तीनों मिक्स हो जाती हैं, जहां पे ये तीनों मिक्स हो जाते हैं उसको कहते हैं जी ट्राई सिटी। उसको क्या कहते हैं? ट्राई सिटी। उसको कहते हैं जी ट्राई सिटी। तो ट्राई सिटी पूछ ले किसको कहते हैं? तो चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला को क्या कहते हैं जी? ट्राई सिटी कहते हैं। उसके बाद में करते हैं जी आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो आज का जो लेक्चर हमारा मेन है वो रहेगा ऊपर की तरफ कौन सी रेंज पड़ती है? ऊपर की तरफ हरियाणा के नॉर्थ साइड कौन सी रेंज है? हरियाणा के नॉर्थ में कौन सी रेंज है? कौन सी पहाड़ियां हैं? तो अगर नॉर्थ की बात कर ले, ऊपर की तरफ हरियाणा के नॉर्थ के ऊपर कौन सी पहाड़ियां हैं, कौन सी रेंज है? तो कौन सी रेंज है जी? शिवालिक रेंज। कौन सी रेंज है? शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज। शिवालिक पहाड़ियां। ऊपर कौन सी पहाड़ियां जी? तो शिवालिक पहाड़ियां। अब ऊपर क्वेश्चन आएगा कि शिवालिक पहाड़ियां हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई है? तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई है जी? 3 डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई है। शिवालिक पहाड़ियां हरियाणा के 3 डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई है। नंबर 1 पे पंचकुला आ गया, नंबर 1 पे पंचकुला आ गया, नंबर 2 पे अंबाला आ गया, नंबर 3 पे कौन सा आ गया जी? यमुनानगर। नंबर 3 पे कौन सा आ गया जी? यमुनानगर। अगर नॉर्थ साइड शिवालिक रेंज पूछ ले भी हरियाणा की जो शिवालिक रेंज है हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में से गुजरती है, या 4 ऑप्शन लिखेगा आपको भी किसमें से नहीं निकलती, तो आपको ऑप्शन हो सकता है कुरुक्षेत्र दे दे, तो कुरुक्षेत्र में शिवालिक रेंज नहीं है। हरियाणा के सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट में ही शिवालिक रेंज है, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। उसके बाद में देखो यहां से पूछ सकता है भी इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो शिवालिक रेंज की सबसे ऊंची चोटी पूछ ले या हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी पूछ ले, बात एक ही है। तो शिवालिक रेंज की सबसे ऊंची रेंज कौन सी है जी? पहली बात तो शिवालिक रेंज के अंदर ना पंचकुला से ऊपर अगर आप जाओगे, ऊपर की तरफ जाओगे तो यहाँ पे कौन सी पहाड़ियां पड़ती है जी? मोरनी की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां हैं? मोरनी हिल्स। कौन सी हिल्स है जी? मोरनी हिल्स, मोरनी की पहाड़ियां। तो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है भी मोरनी की पहाड़ियां हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है? अगर डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन आ जाए तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप टिक करोगे पंचकुला। मोरनी की पहाड़ियां हरियाणा के पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं। और किस साइड में पड़ती है? तो ऊपर नॉर्थ रेंज में पड़ती है। और कौन सी पहाड़ियों में पड़ती है? तो शिवालिक रेंज में या शिवालिक पहाड़ियों में पड़ती है। उसके बाद में क्वेश्चन यहाँ से पूछता है भाई हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन
सी है, या शिवालिक रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो चोटी कौन सी है जी, क्रो चोटी। कौन सी है, क्रो चोटी। कौन सी चोटी है जी, क्रो चोटी। और क्रो चोटी की ऊंचाई पूछ रहे आपको कितनी ऊंची है, तो 1514 मीटर। कितनी है जी, 1514 मीटर। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी चोटी है जी, क्रो चोटी है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, तो पंचकुला में। कौन सी हिल्स में पड़ती है, तो मोरनी हिल्स में। कौन सी पर्वत श्रेणी में पड़ती है, कौन सी शिवालिक रेंज में, कौन सी रेंज में पड़ती है, तो ये शिवालिक रेंज में पड़ती है। तो यहाँ से क्वेश्चन इस टाइप का ये पूछ लेता है। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछता है, शिवालिक रेंज किस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा है। शिवालिक जो पहाड़ियां है कौन से जिले के अंदर ज्यादा है, तो किस जिले के अंदर ज्यादा पड़ती है जी, ये पंचकुला के अंदर। किस जिले के अंदर ज्यादा है, ये पंचकुला के अंदर। तो अगर पहाड़ियां सबसे ज्यादा वहां पे है, तो एक यहाँ पे क्वेश्चन आप और याद रख सकते हो, वो कौन सा है जी, अगर पहाड़ियां ज्यादा है तो दरख्त भी ज्यादा होंगे, दरख्त ज्यादा है तो बारिश भी ज्यादा होगी, क्योंकि जो दरख्त होते हैं वो बारिश लाने के अंदर क्या होते हैं, जो सहाय होते हैं। तो इसलिए अगर आपको पूछ ले हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा बारिश किस जिले के अंदर होती है, तो किस जिले के अंदर होती है जी, पंचकुला के अंदर होती है। हरियाणा के अंदर बारिश किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर होती है सबसे ज्यादा, तो किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर होती है, पंचकुला। याद रखने का तरीका क्या है, क्योंकि पंचकुला के अंदर शिवालिक रेंज सबसे ज्यादा है। शिवालिक रेंज सबसे ज्यादा है, इट दरख्त भी क्या होंगे, ट्रीज भी क्या होंगे, सबसे ज्यादा होंगे। सबसे ज्यादा होंगे तो जो बारिश भी है सबसे ज्यादा कहां पे होगी, पंचकुला के अंदर होगी। अब एक चीज यहाँ पे, अगर सबसे ज्यादा दरख्त की बात की है, सबसे ज्यादा जंगल की बात की है, तो कौन से जिले में है, पंचकुला के अंदर। और सबसे कम जंगल पूछ ले तो सबसे कम जंगल किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है जी, सिरसा के अंदर। सबसे कम जंगल किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, सिरसा के अंदर। सबसे कम क्यों है यहाँ पे, क्योंकि एक तो ये बीच में आ गया, वो एरिया वाइज क्या है, सबसे ज्यादा है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, क्योंकि एरिया वाइज सबसे ज्यादा है, उसी के अंदर क्या होंगे, जंगल भी सबसे क्या होंगे, कम होंगे। तो यहाँ पे जंगल सबसे कम पूछ रहे तो किस जिले के अंदर है, सिरसा के अंदर है। सबसे ज्यादा पूछ रहे तो पंचकुला के अंदर है। सबसे ज्यादा बारिश किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर होती है, तो पंचकुला के अंदर। अगर सबसे कम बारिश पूछ रहे किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर होती है, तो किसके अंदर होती है जी, फतेहाबाद के अंदर। सबसे कम बारिश किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर होती है जी, फतेहाबाद के अंदर। अब बात करते हैं जी, अगर सबसे कम बारिश और सबसे ज्यादा बात कर ली, डिस्ट्रिक्ट की बात कर ली है, तो एक क्वेश्चन आता है हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा बारिश कहां पे होती है, तो वहां पे डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं करेगा, या हरियाणा की चिरापूंजी कह देता है। हरियाणा की चिरापूंजी, हरियाणा की चिरापूंजी। हरियाणा की चिरापूंजी किसको कह देते हैं, तो हरियाणा की चिरापूंजी है जी, यमुनानगर के अंदर ना एक छोटा सा गांव है छछरौली। हरियाणा के अंदर एक छोटा सा गांव है छछरौली। छछरौली मैं पंजाबी के अंदर लिख देता हूं जी, छछरौली। यहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, 120 सेंटीमीटर के करीब बारिश होती है, 140 के करीब, सॉरी 140 सेंटीमीटर के करीब बारिश होती है। पंचकुला के अंदर अगर बात कर ले तो 120 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेट बारिश होती है। सिरसा के अंदर बारिश की बात कर ले तो लगभग 25 सेंटीमीटर के करीब बारिश यहाँ पे होती है। तो अगर सबसे ज्यादा किस जिले के अंदर होती है, तो आप पंचकुला टिक करोगे। हरियाणा की चिरापूंजी पूछ रहे हैं, सबसे ज्यादा बारिश कहां पे होती है, अगर यहाँ पे छछरौली ऑप्शन के अंदर है तो आप छछरौली टिक करोगे। इसके बाद में हम बात करते हैं जी, शिवालिक रेंज से ना 4 नदियां निकलती हैं। कितनी नदियां निकलती हैं, 4 नदियां। कौन सी है, उसको याद करने का तरीका है जी, MSGT, MSGT, MSG जो मूवी आई थी उसके 3 पार्ट थे, तो उसके तरीके से आप याद कर सकते हो MSGT। तो M का मतलब क्या है जी, M का मतलब है मारकंडा। M का मतलब क्या है, मारकंडा। S का मतलब क्या है जी, सरस्वती। S का मतलब क्या है, सरस्वती। G का मतलब क्या है, घग्गर। G का मतलब क्या है जी, घग्गर। और T का मतलब क्या है जी, टांगरी। T का मतलब क्या है, टांगरी। तो मारकंडा, सरस्वती, घग्गर और टांगरी, ये हरियाणा के नॉर्थ साइड। क्वेश्चन देखो किस टाइप से पूछेगा, या तो पूछेगा हरियाणा के नॉर्थ साइड, उत्तर दिशा में कौन सी नदियां हैं, तो उत्तर दिशा में कौन सी नदियां, मारकंडा, सरस्वती, घग्गर और टांगरी। या शिवालिक रेंज की बात कर लेता है वो, हरियाणा के शिवालिक रेंज के अंदर कौन सी नदियां हैं, तो 4 नदियां हैं।
मारकंडा, सरस्वती, घग्गर और टांगरी। मारकंडा, सरस्वती, घग्गर और टांगरी। घग्गर के अंदर से क्वेश्चन फिर पूछ लेता है, जो घग्गर नदी है वो हरियाणा के किस दिशा में बहती है? तो ये घग्गर नदी ऊपर हिमाचल से निकलती है जी, यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती हुई ये कहाँ पे जाती है? पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में जाती है। पंचकुला से ये अंबाला में जाती है। अंबाला से ये किस डिस्ट्रिक्ट में चली जाती है? तो ये अंबाला से चली जाती है जी जींद में। जींद से फतेहाबाद, फतेहाबाद से ये सिरसा होकर ऐसे निकल जाती है। तो ना तो ये कुरुक्षेत्र में एंटर करती है और ना ये कैथल के अंदर एंटर करती है। तो हरियाणा सॉरी तो ऊपर से घग्गर नदी हरियाणा के ऊपर से एंटर करती है पंचकुला। पंचकुला के बाद में अंबाला, अंबाला के बाद में कुरुक्षेत्र एंटर नहीं करती है। कुरुक्षेत्र के बाद में कैथल एंटर कर गई। कैथल से ये वापस किस डिस्ट्रिक्ट में चली जाती है? फतेहाबाद। फतेहाबाद से वापस किस में चली जाती है? सिरसा। तो दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये एंटर नहीं करती। एक तो कुरुक्षेत्र के अंदर एंटर नहीं करती, एक जींद के अंदर एंटर नहीं कर सकती। एक तो कुरुक्षेत्र में एंटर नहीं करती, एक जींद के अंदर एंटर नहीं करती। तो क्वेश्चन यहाँ से 2 या 3 टाइप का पूछता है। एक तो जो घग्गर नदी है वो हरियाणा के किस दिशा में बहती है? तो किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में है। एक पूछता है जो घग्गर नदी है वो हरियाणा के किस किस डिस्ट्रिक्ट से नहीं बहती या किस डिस्ट्रिक्ट से नहीं बहती? वो आपको पंचकुला दे देगा, अंबाला दे देगा, कुरुक्षेत्र दे देगा और कैथल दे देगा। तो यहां से अगर देगा तो कुरुक्षेत्र में नहीं बहती, अगर यहां पे देगा अंबाला दे देगा, कैथल दे देगा, जींद दे देगा, फतेहाबाद। अंबाला, कैथल, जींद और फतेहाबाद। तो यहाँ पे जींद में भी नहीं बहती। इस साइड 2 डिस्ट्रिक्ट है कुरुक्षेत्र और जींद, जहां से घग्गर नदी है जो नहीं बहती। ठीक है जी। पूर्व साइड कौन सी नदी थी हरियाणा के? पूर्व दिशा के अंदर कौन सी नदी थी? तो पूर्व दिशा के अंदर कौन सी नदी है? ये यमुना नदी। यमुना नदी से एक क्वेश्चन और आता है, हरियाणा की मौसमी नदी कौन सी है? तो बाकी इसके बाद तो मौसमी नदी है। घग्गर नदी की बात करेंगे, यहाँ से मारकंडा की बात कर लो, सरस्वती की बात कर लो, घग्गर की बात कर लो, टांगरी की बात कर लो, नीचे से अरावली के अंदर भी हम बात करेंगे। सारी की सारी मौसमी नदी है। बट जो सदाबहार नदी है जिसके अंदर हर मौसम के अंदर आपको पानी देखने को मिलेगा वो यमुना नदी है। यहाँ से क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो ये एक बात हुई। उसके बाद में बात करते हैं जी हरियाणा के जो साउथ साइड है वहां पे कौन सी रेंज पड़ती है? तो यहाँ पे साउथ साइड कौन सी रेंज है? साउथ साइड कौन सी रेंज है जी? तो हरियाणा के साउथ साइड कौन सी रेंज है? अरावली रेंज। कौन सी रेंज है जी? अरावली रेंज। हरियाणा की साउथ साइड कौन सी रेंज है? तो अरावली रेंज। अब अरावली रेंज के अंदर भी क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा आपके पास, भी अरावली रेंज हरियाणा के किस किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो किस किस डिस्ट्रिक्ट में है जी? महेंद्रगढ़ के अंदर भी है, एमजी महेंद्रगढ़, बीएच भिवानी भी है, रेवाड़ी के अंदर भी है, मेवात के अंदर भी है, पलवल के अंदर भी है, फरीदाबाद के अंदर भी है, गुरुग्राम के अंदर भी है। गुरुग्राम के अंदर भी शिवालिक रेंज है वो पड़ती है। अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा भाई अरावली रेंज सबसे ज्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में अंदर है? तो अरावली रेंज सबसे ज्यादा फरीदाबाद के अंदर है। अरावली रेंज सबसे ज्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में बहती है? तो सबसे ज्यादा किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है जी? फरीदाबाद के अंदर है। और जो गोल्फ का मैदान बना हुआ है वो भी कहां पे बना हुआ है जी? फरीदाबाद के अंदर बना हुआ है। और हरियाणा की सबसे बड़ी झील की बात कर ले, हरियाणा की सबसे बड़ी जो झील है बड़खल झील है वो भी कहां पे है जी? फरीदाबाद के अंदर है। वो भी कहां पे है जी? फरीदाबाद के अंदर है। तो यहाँ पे ही सूरजकुंड है, सूरजकुंड का मेला लगता है, वो भी सारा कुछ क्या है फरीदाबाद के अंदर है। एक इसके अंदर पूछेगा अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी, जैसे शिवालिक रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? क्रो चोटी। ऊंचाई कितनी थी? 1514 मीटर। एक क्वेश्चन यहाँ से रह गया था भी शिवालिक रेंज जो है वो हरियाणा का कितना एरिया कवर करती है? शिवालिक रेंज जो है हरियाणा का कितना एरिया कवर करती है? तो 1.68%। कितना एरिया कवर करती है जी? 1.68% एरिया है जो कवर करती है। उसके बाद में अरावली रेंज की बात करेगा तो अरावली रेंज हरियाणा का कितना परसेंट एरिया कवर करती है? तो 1.38%। कितना एरिया कवर करती है जी? 1.38%। अब इसमें क्वेश्चन पूछेगा भी जो अरावली रेंज है वो
उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो कौन सी है जी? ढोंसी की चोटी। नाम थोड़ा सा अजीब है दोस्तों, ढोंसी, ढोंसी की चोटी, ढोंसी। और ऊंचाई पूछ रहे ढोंसी की चोटी कितनी है? तो 652 मीटर। कितनी ऊंचाई है जी? 652 मीटर। ढोंसी की चोटी की ऊंचाई, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 652। ये देखो हरियाणा की नहीं है, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी पूछ ले या शिवालिक की पूछ ले तो 1514 मीटर क्रॉस चोटी है। हाँ, अरावली की पूछ ले सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ढोंसी की चोटी है। और हाइट पूछ ले तो 652। ये किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? तो किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है जी? ये महेंद्रगढ़ के अंदर है। वो आपको महेंद्रगढ़ ऑप्शन में नहीं देगा, वो आपको ऑप्शन देगा नारनौल। नारनौल क्या ऑप्शन देगा जी? नारनौल, क्योंकि महेंद्रगढ़ की एक तहसील है नारनौल, वही मशहूर है। यहां पे क्वेश्चन और बता देता हूं क्या आता है। जितने भी हेड ऑफिस हैं, जितने भी हेड ऑफिस है जहां पे डीसी बैठता है, हर एक जिले का वहीं पे है। यमुनानगर का डीसी अगर बात कर ले, कहां पे बैठता है? यमुनानगर के अंदर। करनाल का करनाल के अंदर, पानीपत का पानी के अंदर, सिरसा का सिरसा के अंदर। मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो हेड ऑफिस है उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बना हुआ है। सिर्फ और सिर्फ महेंद्रगढ़ एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसका हेड ऑफिस महेंद्रगढ़ में नहीं है। कहां पे है जी? नारनौल के अंदर है। तो अब इसको याद रखने का तरीका आप देख सकते हो भी, क्यों है नारनौल के अंदर? क्योंकि नारनौल मशहूर है। किसके लिए मशहूर है जी? ढोंसी की चोटी के लिए। क्यों मशहूर है जी? ढोंसी की चोटी के लिए। और ढोंसी की चोटी की ऊंचाई पूछ ले तो कितनी है जी? 652 मीटर। 652 मीटर। एक चीज और यहां पे मैं बता देता हूं, ढोंसी की चोटी और पूछ ले अगर और डीप के अंदर पूछेगा तो नारनौल की बजाय आपको कुलताजपुर काम दे सकते हैं। वो कुलताजपुर, कुलताजपुर, कुलताजपुर कहां पे है ये? कुलताजपुर के अंदर है। कहां पे है? कुलताजपुर के अंदर। अब एक और मैं बता देता हूं यहां पे नारनौल का। च्यवन ऋषि आपसे पूछ सकता है। च्यवन ऋषि कौन सा ऋषि? च्यवन, च्यवन ऋषि। अब च्यवन ऋषि कौन है जी? जो च्यवनप्राश के ऊपर फोटो बनी होती है जिस ऋषि की, वो कौन है जी? च्यवन ऋषि है। च्यवन ऋषि पूछ रहे हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? तो किस जिले से संबंधित है जी? महेंद्रगढ़। अगर महेंद्रगढ़ ऑप्शन में नहीं होगा तो कौन सा ऑप्शन होगा जी? नारनौल। च्यवन ऋषि हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं जी? तो नारनौल से। गुरुग्राम के अंदर आपको ऑलरेडी मैंने पहले बता दिया था। अगर गुरु द्रोणाचार्य की अगर बात करेगा, गुरु द्रोणाचार्य क्वेश्चन लास्ट ईयर एचटेट के अंदर आया होगा ये भी, हरियाणा के गुरु द्रोणाचार्य हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो वो गुरुग्राम से संबंध रखते हैं। ठीक है जी। तो अब यहां से भी 3 नदियां निकलती हैं, शिवालिक रेंज से भी 3 नदियां निकलती हैं। वो कौन सी है जी? एक तो है दोहन, दोहन नदी, एक इंदौरी नदी, एक दोहन नदी, एक इंदौरी नदी, एक है जी आपकी साहिबी नदी। एक कौन सी है? साहिबी नदी। दोहन, इंदौरी और साहिबी, दोहन, इंदौरी और साहिबी। तो ये हरियाणा के सॉरी अरावली रेंज से 3 नदियां निकलती हैं, दोहन, इंदौरी, साहिबी। दोहन, इंदौरी और साहिबी। ऊपर से कौन सी थी? तो 4 थी, मारकंडा, सरस्वती और घग्गर एंड टांगरी। बेटा दोस्तों, जो नदियों के ऊपर से एक क्वेश्चन आपको पुट करेगा, और दोनों लेक्चर अगर आप देखोगे, दोनों लेक्चर में से सारी आपकी हरियाणा जीके कवर हो जाएगी, जिसमें से 10 नंबर की हरियाणा जीके जो एचटेट के अंदर आती है वो इसी दोनों लेक्चर में से आएगी। तो दोनों लेक्चर आपने ध्यान में से देखने। तो ये एक बात हुई। उसके बाद में हम बात करते हैं जी इसके बाद में हम बात करते हैं, ऑलरेडी पहले भी हम बात कर चुके हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मेंशन करने रह गए हैं। एक तो रोहतक रह गए,
रोहतक ये आपका यहाँ पे आ गया, और एक आपका आ गया जी चरखी दादरी। एक ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ था, हरियाणा का कौन सा जिला किसी अन्य राज्य के साथ अपनी सीमा शेयर नहीं करता? हरियाणा का वो कौन सा जिला है जो किसी दूसरे राज्य के साथ अपनी सीमा शेयर नहीं करता? क्योंकि चरखी दादरी 2016 के अंदर बना था। आपको बताया था चरखी दादरी हरियाणा का लास्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? हरियाणा का लास्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो चरखी दादरी है। हरियाणा का लास्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जी? तो चरखी दादरी है। इसकी आपको मैंने पॉपुलेशन भी बताई थी, पॉपुलेशन कितनी है? 5,02,273, 5,02,273। हरियाणा का आखिरी डिस्ट्रिक्ट, आखिरी जिला चरखी दादरी। अगर पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा जिला पूछ रहे तो चरखी दादरी था, क्योंकि वो क्वेश्चन डाल दिया उतनी, क्योंकि वहां पे चरखी दादरी ऑप्शन में भी नहीं है और वो क्वेश्चन उसने 2011 के अनुसार डाला है। तो उस टाइम जब चरखी दादरी जब डिस्ट्रिक्ट नहीं बना था, उस टाइम अकेला एक रोहतक ऐसा जिला था जिसकी सीमा किसी अदर जो स्टेट है उसके साथ नहीं लगती, तो वहां पे ऑप्शन आपका रोहतक ठीक था। तो बट अब 2 डिस्ट्रिक्ट हो चुकी हैं, तो हो सकता है आपको ऑप्शन यहाँ पे चरखी दादरी दे दिया, रोहतक दे दिया। उसके बाद में आपको सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी बताया था, पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो फरीदाबाद था। कितनी पॉपुलेशन थी? 18,09,733। यहाँ पे बलबल आ गया। अब एक दो चीजें और करते हैं दोस्तों, इनकी जो फेमस नेम है वो करते हैं। फेमस नेम कौन से हैं? सबसे पहले यमुनानगर से करते हैं। यमुनानगर, तो यमुनानगर के अंदर क्या क्या चीजें हैं? एक तो सबसे ज्यादा जो गन्ना होता है हरियाणा के अंदर, सबसे ज्यादा गन्ना कहां पे होता है? यमुनानगर के अंदर। एक सबसे पुरानी शुगर मिल की अगर बात कर ले, सरस्वती शुगर मिल, सरस्वती शुगर मिल। देखो मैंने यहां से 4 नदियों की बात की थी। जो सरस्वती नदी है अगर उसकी एंट्री की बात करें तो यमुना नदी के अंदर ही होती है, यमुनानगर के अंदर ही होती है। और सरस्वती नदी के नाम से ही यहाँ पे सरस्वती शुगर मिल, हरियाणा के सबसे पुरानी शुगर मिल की बात करें तो किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? वो यमुनानगर के अंदर है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे ज्यादा गन्ना पूछ ले तो कहां पे होता है? यमुनानगर के अंदर होता है। पेपर सिटी पूछ ले, पेपर सिटी, पेपर सिटी, पेपर सिटी किसको कहते हैं? तो किसको कहते हैं जी? यमुनानगर को कहते हैं। किसको कहते हैं? यमुनानगर के अंदर। एक और यमुनानगर की मैं आपको बात बता देता हूं, जो महाभारत लिखी थी, महाभारत किसने लिखी थी? महाभारत, महाभारत लिखती महर्षि वेद व्यास ने। किसने लिखी थी? वेद व्यास ने। किसने लिखी थी? महर्षि वेद व्यास ने। पूछ ले कहां पे लिखी थी? तो सरस्वती नदी के किनारे पे बैठ के लिखी थी। सरस्वती नदी के किनारे पे बैठ के लिखी थी। किसने लिखी थी? महर्षि वेद व्यास ने। कहां पे लिखी थी? सरस्वती नदी के किनारे। किससे लिखी थी? तब मोर पंख से। किससे लिखी थी? मोर पंख से। उसके बाद में आप अभी बात कर लेते हैं करनाल की। सेकंड डिस्ट्रिक्ट किसकी बात कर लेते हैं? करनाल। तो करनाल को क्या कहते हैं जी? करनाल को क्या क्या कहते हैं? एक तो देखो धान का कटोरा, धान का कटोरा। सबसे ज्यादा अगर आपके पास बासमती धान की बात कर लेंगे, सबसे ज्यादा बासमती धान कहां पे होता है या सबसे ज्यादा धान कहां पे होते हैं? तो करनाल के अंदर होता है। कहां पे होता है जी? करनाल के अंदर। एक धान का कटोरा कह दे, सबसे ज्यादा धान पूछ ले, अंगराज कर्ण की नगरी कह दे, अंगराज कर्ण, अंगराज कर्ण कह दे, तो किसको कहते हैं जी? अंगराज कर्ण भी किसको कहते हैं? करनाल को, क्योंकि करनाल कर्ण के नाम से ही पड़ा हुआ है। और कर्ण कौन था जी? जो कौरव और पांडव थे उनका भाई था, एक्चुअली पांडवों का भाई था, कुंती का पुत्र था। एक करनाल को कहते हैं जी सबसे ज्यादा स्वच्छ शहर, सबसे साफ सुथरा शहर अगर बात कर ले तो किसको कहते हैं जी? करनाल को कहते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं जी पानीपत की। किसकी बात करते हैं? पानीपत की। इसको कहते हैं जी पानीपत को बुनकरों की नगरी, बुनकरों की नगरी। बुनकर, बुनकर क्या होते हैं जी? जो आर्मी के कपल, यहां से देखो क्वेश्चन आए हुए दोस्तों,
सबसे ज्यादा आर्मी के कंबल कहां पे बनते हैं? तो कहां पे बनते हैं जी? पानीपत में। कहां पे बनते हैं? पानीपत में। 75% जो आर्मी के कंबल बनते हैं वो कहां पे बनते हैं? पानीपत के अंदर बनते हैं। कहां पे बनते हैं जी? पानीपत के अंदर। एक पानीपत किसके लिए मशहूर है? 3 लड़ाइयां हुई थी यहाँ पे पानीपत के अंदर। 3 लड़ाइयां, एक तो 1526 के अंदर हुई थी, एक 1556 के अंदर हुई थी, एक 1761 के अंदर हुई थी। 1526, 1556 और 1761 पानीपत की 3 लड़ाइयां बहुत ज्यादा मशहूर है। 1526 की, 1556 की और 1761 की। तो 1526 की अगर बात कर लें तो किस किस के बीच में लड़ाई हुई थी? 1526 की जो लड़ाई हुई थी वो किस किस के बीच में हुई थी? हाँ जी दोस्तों, सॉरी, पानीपत की हम बात कर रहे थे। पानीपत की 3 लड़ाइयां बहुत मशहूर है। पहली 1526, दूसरी 1556 और तीसरी 1761। तो 1526 किस बीच में हुई थी? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। यहां पे लिख देता हूं मैं, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। तो यहाँ पे जो बाबर था वो जीता था, इब्राहिम लोदी यहाँ पे मारा गया था। पानीपत की पहली लड़ाई के अंदर इब्राहिम लोदी मारा गया था। और यहीं पे जब मारा गया तो यहीं पे इसका क्या बना दिया? मकबरा बना दिया। अगर लोदी के मकबरे की बात कर ले या इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पे बना हुआ है तो वो कहाँ पे बना हुआ है जी? पानीपत के अंदर बना हुआ है। क्योंकि आपको पता है यहीं पे बाबर और इब्राहिम लोदी की जो लड़ाई हुई थी वहीं पे लोदी मारा गया था और बाबर जीत गया था। तो इसकी जो वाइफ थी, बाबर की जो वाइफ थी वो कौन सी थी जी? इसकी वाइफ थी जो मुसम्मत काबली थी। मुसम्मत काबली। तो मुसम्मत काबली, अगर मुसम्मत काबली यहाँ पे थी तो काबुली बाग की बात कर ले, काबुली बाग की बात कर ले, काबुली महल की बात कर ले, काबुली मस्जिद की बात कर ले। काबुली बाग, काबुली महल, काबुली मस्जिद की अगर बात कर ले तो कहां पे है जी? तो वो भी कहां पे है? पानीपत के अंदर है। वो भी कहां पे है जी? पानीपत के अंदर है। तो उसके बाद में हम बात करते हैं जी पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी? 1556 के अंदर। कब हुई थी? 1556 के अंदर। 1556 के अंदर किस किस के बीच में हुई थी? तो एक का था विक्रम, हेमू कह देते इसको, हेमू वर्सेस अकबर। हेमू वर्सेस अकबर। हेमचंद्र विक्रमादित्य भी कह सकते हैं। आपको पूरा नाम क्या है इसका? हेमू का हेमचंद्र विक्रमादित्य। और अकबर नाम दे करके आपको क्या कह सकता है? वो भैरम खान। क्योंकि हेमू अकबर उस टाइम क्या था? 14 साल का था। क्योंकि 42 के अंदर तो अकबर का बर्थ होता है और 56 के अंदर ये लड़ाई होती है। तो लीड कौन कर रहा होता है? भैरम खान। तो आपके पास जो पानीपत की सेकंड बैटल कहते हैं हेमू वर्सेस अकबर के बीच में हुई थी। तो यहाँ पे जीतता कौन है जी? अकबर। और हारता कौन है? हेमू यहाँ पे हार जाता है। हेमचंद्र विक्रमादित्य। और पूछ ले कहां से था? तो ये निवाड़ी का राजा था। हेमचंद्र विक्रमादित्य हिंदू था। और यहां से क्वेश्चन एक और पूछता है, दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाला आखिरी हिंदू शासक। क्योंकि इसके बाद में मुगलों का राज हो गया था दिल्ली के अंदर, क्योंकि अकबर मुगल था। और अगर पूछे क्वेश्चन दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाला आखिरी हिंदू शासक कौन था? तो हेमू था। सबसे कम समय के लिए बैठने वाला पूछ ले तो वो भी कौन सा था जी? हेमू था। 28 डेज 28 दिनों के लिए दिल्ली की गद्दी पे बैठा था। 28 डेज 28 दिनों के लिए दिल्ली की गद्दी पे बैठा था। और अकबर खान इसके बाद में जो है क्या है, मुगलों की जो सल्तनत है वो शुरू हो जाती है। मुगलों की बात कर ले भी, हिंदुओं की जो समाप्ति है वो कब हो जाती है या मुगल सल्तनत कब से शुरू हो जाती है? तो वो पानीपत की दूसरी बैटल के बाद शुरू हो जाती है 1556 के अंदर। थर्ड जो बैटल है वो किसकी है? 1761 के अंदर। 1761 के अंदर किस किस के बीच में होती है? एक तो
मराठा, एक अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। पानीपत मूवी देखी होगी आपने, पानीपत मूवी देखी होगी। मराठा, मराठों का जो सरदार था वो कौन था जी? सदाशिव राव भाव, सदाशिव राव भाव। और दूसरी तरफ कौन सा था? अब्दाली था। तो यहाँ पे हार किसकी होती है? मराठों की। जीतता कौन है जी? अहमद शाह अब्दाली। कौन जीतता है? अहमद शाह अब्दाली। अगर आपसे पूछ ले ब्रिटिश राज की स्थापना हिंदुस्तान के अंदर कब होती है, तो इस पानीपत की लड़ाई के बाद में शुरू हो जाती है। सेकंड के अंदर अगर बात कर लें, सेकंड बैटल के अंदर कौन सा था? अकबर और हेमू के अंदर था। चलो वापस थर्ड, मराठा और अहमद शाह अब्दाली, ब्रिटिश राज की जो स्थापना हो जाती है वो कब हो जाती है? थर्ड बैटल के अंदर। और किस किस के बीच में होती है? मराठा और अहमद शाह अब्दाली। एक यहाँ पे काला अम, काला अम जगह की बात करता है, काला अम, काला अम, जहां पे ये लड़ाई हुई थी। वहां पे क्या कहते हैं, जो जगह है ना, उस जगह के अंदर बहुत सारे मराठाओं की डेथ हुई थी। बहुत सारे मराठाओं की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। और वहां पे कहते हैं एक आम का पेड़ उगा हुआ है और जिसका रंग क्या है जी? ब्लैक है, काला है। इसीलिए उस जगह का नाम भी क्या रख दिया जी? काला आम रख दिया। तो ये तो बात हुई जी पानीपत की, बुनकरों का शहर भी कह देते हैं इसको। उसके बाद में बात करते हैं जी सोनीपत। किसकी बात करते हैं? सोनीपत। तो सोनीपत के अंदर क्या कुछ है? एक तो इसको साइकिल सिटी कह देते हैं, साइकिल सिटी। सोनीपत का क्या मशहूर है जी? साइकिल सिटी। अगर बात कर लें तो किसको कहते हैं जी? सोनीपत के अंदर कहते हैं। एक इसका जो लिंग अनुपात है, सेक्स रेशियो है, सोनीपत का कितना है जी? 856 था साइकिल सिटी। और 856 आप सेक्स रेशियो बात कर सकते हो कि सबसे कम अगर सेक्स रेशियो थी वो किसके अंदर थी? गुरुग्राम के अंदर थी। कितनी थी? 854 थी। कितनी थी जी? 854। हरियाणा की अगर बात कर लें तो 879 पर 1000। और सबसे कम की बात कर ले तो गुरुग्राम। उसके बाद की अगर बात कर ले तो सोनीपत। सबसे ज्यादा लिंग अनुपात है तो वो कहां पे था? मेवात के अंदर था। कितना था जी? 907 था। कितना था? 907। सबसे ज्यादा लिंग अनुपात किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर था? 907। सबसे ज्यादा पढ़े लिखों की बात हुई थी कहां पे थी? गुरुग्राम के अंदर थे। कितने थे? 84.70%। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कहां पे है जी? गुरुग्राम के अंदर। और सबसे कम पढ़े लिखे कहां पे थे? मेवात के अंदर थे। कितने हैं जी? 54%। कितने हैं? 54%। तो उसके बाद में बात करते हैं जी हम झज्जर की। तो झज्जर को क्या कहते हैं? शहीदों का शहर। झज्जर को क्या कहते हैं? शहीदों का शहर। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब सेकंड जो वर्ल्ड वार हुई थी, दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, कब हुआ था दूसरा विश्व युद्ध? 1939 से चला था, 1945 तक चला था। तो जो उस टाइम को भी हम आपको पता भी अंग्रेजों का जो राज था और जो अंग्रेज गए भी हैं, अगर हमें आजादी भी मिली है, वो दूसरे विश्व युद्ध का उसमें बहुत बड़ा योगदान था। तो जो झज्जर से जब बहुत ज्यादा शहीद हुए थे, क्योंकि अंग्रेजों के लिए सहायता के लिए सैनिक भेजे थे, इंडिया से गए थे, तो सबसे ज्यादा जो सैनिक गए थे या सबसे ज्यादा जो सैनिक शहीद हुए थे वो कहां से थे? झज्जर थे। इसीलिए इसको शहीदों का शहर कह देते हैं। एक गांव भी है शहीदों का गांव, वो फरीदाबाद के अंदर है, तिगाम। तिगाम शहीदों का गांव पूछ ले तो तिगाम है, शहीदों का शहर पूछ ले तो झज्जर है। उसके बाद में हम बात करते हैं गुरुग्राम की। गुरुग्राम एक झज्जर के अंदर एक चीज और बता देता हूं मैं, हरियाणा का प्रवेश द्वार। अगर हरियाणा का प्रवेश द्वार पूछ ले तो वो कौन सा है जी? बहादुरगढ़। कौन सा है? बहादुरगढ़। हरियाणा का प्रवेश द्वार कौन सा है? बहादुरगढ़। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। और एक आपको पता है जो मिस वर्ल्ड बनी थी हरियाणा की, कौन सी थी? मानुषी छिल्लर। मानुषी छिल्लर वो भी कहां से थी? बहादुरगढ़ थी। वो भी कहां से थी? बहादुरगढ़ से थी। एक यहां से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, पार्ले जी की फैक्ट्री। पार्ले जी की फैक्ट्री, पार्ले जी की फैक्ट्री, जो पार्ले जी के बिस्कुट आते हैं वो भी कहां पे है जी? बहादुरगढ़ के अंदर है। एक बाटा जो चप्पलें आती है बाटा की, वो भी कहां पे है जी? वो भी कहां पे है? बहादुरगढ़ के अंदर। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? मानुषी छिल्लर थी
जो मिस वर्ल्ड बनी थी वो बाटों की चप्पल, उसने बाटे की चप्पल पहनी थी और पार्ले जी के बिस्कुट खा के वो क्या बन गई थी, मिस वर्ल्ड बन गई थी। और दिल्ली से इंटर खाते गया था, प्रवेश हुआ बहादुरगढ़ से उसने दिल्ली से, और दिल्ली के अंदर क्या किया था, इंटर किया था। उसके बाद में गुरुग्राम की हम ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं। गुरु द्रोणाचार्य की नगरी अगर पूछ ले तो किसको कहते हैं, गुरुग्राम को साइबर सिटी कहते हैं, साइबर सिटी तो भी किसको कहते हैं, गुरुग्राम को। मिलेनियम सिटी पूछ ले किसको कहते हैं, तो भी गुरुग्राम को। उसके बाद में फरीदाबाद की आप ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एरिया वाइज सबसे कम, एरिया वाइज सबसे कम कितना एरिया था कि 843 स्क्वायर किलोमीटर, एरिया वाइज सबसे कम। और पॉपुलेशन वाइज सबसे ज्यादा, तो पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा थी। कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी थी, 2442। कितनी थी जी, 2442। एक क्या कहते हैं फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो उद्योग है वो कहां पे है जी, फरीदाबाद के अंदर ही है। पलवल की अगर बात कर लें, एक तो गांधी की पहली बार गिरफ्तारी कहां पे हुई थी, तो पलवल के रेलवे स्टेशन पे। गांधी की सबसे पहले इंडिया के अंदर गिरफ्तारी की अगर बात कर लें तो कहां पे हुई थी, पलवल के अंदर हुई थी। कब हुई थी जी, 10 अगस्त 1919 के अंदर, 10 अगस्त 1919 के अंदर गांधी की पहली गिरफ्तारी हुई थी इंडिया के अंदर। अदरवाइज साउथ अफ्रीका में गिरफ्तारी हो गई थी 1908 के अंदर, बट इंडिया के अंदर 10 अगस्त 1919 को हुई थी पलवल के रेलवे स्टेशन पे। वहीं पे गांधी का आश्रम भी बना हुआ है। गांधी आश्रम आपसे पूछने कहां पे बना हुआ है, तो पलवल के अंदर बना हुआ है। कॉटन सबसे ज्यादा, कॉटन सबसे ज्यादा कहां पे होते हैं, तो पलवल के अंदर ही होते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं ठीक मेवात की, मेवात जिसको हम नू भी कह देते हैं। ऑलरेडी हम आप मैंने पहली वीडियो में बताया है, हरियाणा गवर्नमेंट ने 2 डिस्ट्रिक्ट के नाम चेंज किए थे। कब किए थे, 12 अप्रैल 2016 को। एक तो गुड़गांव इसका नाम कर दिया था गुरुग्राम, एक मेवात इसका नेम चेंज कर दिया था नू, मेवात को क्या कर दिया था, नू। दोनों डिस्ट्रिक्ट के नाम चेंज किए थे। और मेवात का मेवों का शहर क्या कहते हैं जी, मेवों का शहर, क्योंकि गांधी ने बसाया था। और मेवों का शहर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो जितनी भी है पॉपुलेशन है वो सारी की सारी मुस्लिम कम्युनिटी है। तभी यहाँ पे जो पॉपुलेशन जो सेक्स रेशियो आपको बताई थी मैंने वो सबसे ज्यादा है। कितनी थी, 907। कितनी थी, 907। और पढ़े लिखे यहाँ पे क्या है जी, सबसे कम है। उसके बाद में रेवाड़ी की बात कर लेते हैं जी। तो रेवाड़ी के अंदर क्या है जी, सबसे ज्यादा मशहूर, एक तो पीतल नगरी कह देते हैं इसको, पीतल नगरी। सबसे ज्यादा पीतल अगर मिलता है तो कहां पे मिलता है जी, रेवाड़ी के अंदर मिलता है। एक जो रेवाड़ी का रेलवे स्टेशन है वो सबसे बड़ा स्टेशन है। हरियाणा का रेलवे स्टेशन अगर बात कर ले, हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो रेवाड़ी का है। एक यहाँ पे सबसे पहली जो रेल चली थी हरियाणा के अंदर वो भी कहां पे चली थी, रेवाड़ी के अंदर। कब चली थी जी, 1873 के अंदर। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, इंडिया के अंदर सबसे पहली ट्रेन कौन सी चली थी, इंडिया के अंदर सबसे पहली ट्रेन कौन सी चली थी और कहां से चली थी। हरियाणा का मैंने आपको बता दिया था, कहां से चली थी, रेवाड़ी से चली थी। कब चली थी, 1873 के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं जी महेंद्रगढ़। तो महेंद्रगढ़ की हम ऑलरेडी पहले से बात कर चुके हैं। चूड़ियां अगर सबसे ज्यादा मिलती हैं, चूड़ियां अगर सबसे ज्यादा मिलती है तो कहां पे मिलती है जी, महेंद्रगढ़ पे मिलती हैं। चूड़ियां सबसे ज्यादा कहां पे मिलती हैं, तो महेंद्रगढ़ पे मिलती हैं। और महेंद्रगढ़ के अंदर क्या कहते हैं जी, खनिजों का भंडार, खनिजों का भंडार, खनिजों का भंडार। क्या कहते हैं जी, खनिजों का भंडार। जितने भी खनिज मिलते हैं, जितने भी खनिज मिनरल्स मिलते हैं वो कहां से मिलते हैं जी, महेंद्रगढ़ से मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पे अरावली पर्वत है, तो अरावली पर्वत होने के कारण आप यहाँ पे ढोसी की चोटी सबसे ऊंची चोटी याद कर सकते हो। और यहीं से क्या सबसे ज्यादा मिनरल्स हैं जो मिलते हैं। उसके बाद में बात करते हैं भिवानी की। भिवानी का कोई ज्यादा है नहीं याद रखने के लायक, या इसका कोई अलग नेम है नहीं। हिसार, हिसार को क्या कहते हैं, हिसार ए फिरोजा, हिसार ए फिरोजा। फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था हिसार ए फिरोजा। फिरोज शाह तुगलक ने 2 शहर बसाए थे, एक तो हिसार, एक फतेहाबाद। क्योंकि फिरोज शाह तुगलक का बेटा था फतेह सिंह के नाम फतेह खान के नाम पे फतेहाबाद बसाया था।
और हिसार भी उसने बसाया था, हिसारे फिरोजा। और एक हिसार का क्या कहते हैं जी, स्टील सिटी, स्टील सिटी। हिसार को क्या कहते हैं, स्टील सिटी, क्योंकि जो ओपी जिंदल है, ओपी जिंदल वो कहां से है जी, हिसार से है। ओपी जिंदल कहां से है, हिसार से है। और जो सबसे बड़ी स्टील इंडस्ट्री है वो कहां पे है, हिसार में। इस्पात नगरी भी कह देते हैं इसको, इस्पात नगरी, इस्पात नगरी। इस्पात कह दो, लोहा कह दो, एक ही बात है। स्टील कह दो, स्टील नगरी कह सकता है, इस्पात नगरी कह सकता है। हिसारे फिरोजा या फिरोजशाह तुगलक ने कौन सा शहर बनाया था, तो हिसार ही बसाया था। और जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था 1 नवंबर 1966 को, सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट था वो कौन सा था, हिसार ही था। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं जी सिरसा की। सिरसा किस किस के लिए फेमस है, एक तो एरिया वाइज सबसे बड़ा, कितना एरिया जी, 4277 स्क्वायर किलोमीटर। हरियाणा का टोटल एरिया आपको मेरे बंदे ने बता दिया है 44,212, ये हरियाणा का है, ये हरियाणा का है। और एरिया वाइज जो रैंक अगर पूछ ले, एरिया वाइज अगर रैंक पूछ ले तो कौन सा रैंक है जी, एरिया वाइज 21वां। कौन सा रैंक है जी, 21वां। पॉपुलेशन कितनी है जी, 253,51,462, ये पॉपुलेशन है हरियाणा की। हरियाणा की पॉपुलेशन कितनी है, 253,51,462। और पॉपुलेशन वाइज रैंक अगर पूछ ले तो 18वां रैंक है, इंडिया का 18वां रैंक है हरियाणा का। इंडिया में 18वां रैंक है हरियाणा का पॉपुलेशन वाइज। एरिया वाइज 21वां, 44,212। और सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है एरिया वाइज, तो सिरसा है। कितना एरिया, 4277। सबसे एरिया वाइज सबसे छोटा फरीदाबाद 843 स्क्वायर सेंटीमीटर। और पॉपुलेशन डेंसिटी भी सबसे ज्यादा कम यहीं पे 303 पर स्क्वायर किलोमीटर, 303 पर्सन रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। सरस्वती नगरी, सरस्वती नगरी एक आपको बता दिया है, सबसे ज्यादा सॉरी सबसे कम जंगल कहां पे है, सिरसा के अंदर। क्यों है, क्योंकि ऊपर शिवालिक एरिया आ गया, नीचे अरावली आ गया, तो बीच में पड़ गया ये। और एरिया वाइज सबसे ज्यादा, तो सबसे कम जंगल यहीं पे है। और बरसात सबसे कम कहां पे पड़ती थी, तो फतेहाबाद के अंदर। सरस्वती नगरी भी कह देते हैं इसको, सरस्वती नगरी या महाराजा सास की नगरी, सास नगरी, सास नगरी किसको कहते हैं जी, तो भी इसको कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं जी, संतों की नगरी। और क्या कहते हैं जी, संतों की नगरी, संतों की नगरी। उसके बाद में फतेहाबाद आपको पहले से बता दिया। पिंक सिटी पूछे, पिंक सिटी, गुलाबी नगरी पूछ ले तो कौन सा है जी, फतेहाबाद है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं जी जींद की, हार्ट ऑफ हरियाणा। क्या है जी, हार्ट ऑफ हरियाणा, हार्ट ऑफ हरियाणा, हार्ट ऑफ हरियाणा। उसके बाद में पूछ ले एक और क्या मशहूर है जींद के लिए, जो मुर्रा नस्ल की भैंसे हैं, मुर्रा नस्ल की भैंसे, मुर्रा नस्ल की भैंसे जिन्होंने पंजाब में मच्छा क्या देना। मुर्रा नस्ल की भैंसे कहां पे मिलती है सबसे ज्यादा, तो जींद के अंदर मिलती है। कहां पे मिलती है जी, तो जींद के अंदर। ठीक है जी। अब थोड़ा सा डाटा चेंज हो गया, वो रोहतक के अंदर चली गई है, बट याद रखने का तरीका है। तो एक चीज और यहां से आपका क्वेश्चन, मुर्रा नस्ल की भैंसे को क्या कहते हैं, ब्लैक गोल्ड। क्या कहते हैं जी, ब्लैक गोल्ड। हरियाणा का काला सोना किसको कहते हैं, हरियाणा का काला सोना किसको कहते हैं, मुर्रा नस्ल की भैंसों को कहते हैं। सबसे ज्यादा दूध उत्पादन में कौन सा डिस्ट्रिक्ट ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा दूध की प्रोडक्शन कहां पे होती है, जींद के अंदर होती है। और अब जो मुर्रा नस्ल की भैंसों की बात कर रहा हूं मैं, अब जो डाटा नया आ चुका है वो कौन सा आ गया जी, रोहतक आ चुका है। अगर रोहतक ऑप्शन में ना हो तो आप जींद भी कर सकते हैं। जींद के ऊपर आ गया जी आपका कैथल, जींद के ऊपर आपका क्या आ गया जी, कैथल के भी कोई उपनाम नहीं है। कपिस्थल कह देते हैं, हनुमान की नगरी कह देते हैं, तो हनुमान नगरी कह देते तो कौन सा है जी, कैथल है। कुरुक्षेत्र, अब कौन सा आ गया जी, कुरुक्षेत्र, के कुरुक्षेत्र। एक तो देखो कुरुक्षेत्र को क्या कहते हैं जी, धर्म नगरी,
धर्म नगरी, क्योंकि कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ था। यहाँ पे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी हरियाणा की, कब बनी थी ये 1956 के अंदर बनी थी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कब बनी थी, 1956 के अंदर बनी थी। उसके ऊपर अगर बात कर ले अम्बाड़ा की, तो अम्बाड़ा जो कैंट है हरियाणा का, अम्बाड़ा कैंट जो है हरियाणा का सबसे बड़ा कैंट है, सबसे बड़ा और सबसे पुराना कैंट है, 1933 के अंदर बना था। जो अभी जो डसोल्ट जो हमारे पास डसोल्ट कंपनी से जो खरीदे हैं हमने, जहाज खरीदे हैं ना, तो वो भी कहाँ पे उतारे थे, अम्बाड़ा के अंदर। उसके बाद में पंचकुला आ गया जी, तो पंचकुला के अंदर हमने मोरनी हिल्स की बात कर ली थी, ठीक है जी। एक जितने भी हेड ऑफिस हैं हरियाणा के, जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे ऑफिस कहाँ पे है, पंचकुला के अंदर ही है। एक रोहतक की बात कर ले तो एक तो देखो एजुकेशन हब आता है, एजुकेशन हब, एजुकेशन हब तो वो कहते हैं रोहतक को। एक आती है एजुकेशन सिटी, वो किसको कहते हैं, सोनीपत को, एजुकेशन सिटी। साइकिल सिटी कह दो तो भी सोनीपत को, एजुकेशन सिटी कह देगा तो भी सोनीपत को, बट एजुकेशन हब कह देगा तो रोहतक को, एजुकेशन हब कह दे तो रोहतक को। और जितने भी नेता थे, इसको नाम मैं भूल गया, ठीक है जी, तो वो किसको कहते हैं जी, रोहतक से मानो जितने भी लीडर थे हरियाणा के, चाहे वो खट्टर की बात कर लो, वो भी पहले बात उसका करनाल के अंदर है, मतलब रहता है रोहतक के अंदर है। भूपिंदर सिंह हुड्डा की अगर बात करो तो रोहतक के अंदर है। और उसके बाद में चरखी दादरी का क्या फेमस है, तो चरखी दादरी जो हरियाणा का आखिरी जिला है वो चरखी दादरी है। तो दोस्तों एक बार फिर से आपको रिक्वेस्ट है, बेनती है, जो केवी क्लासेस सरदुलगढ़ का जो पेज है, यूट्यूब चैनल है, प्लीज उसको जरूर लाइक एंड शेयर करो और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ताकि जो आगे भी आपको वीडियो है हरियाणा जीके के रिलेटेड है, चाहे वो मैथ के रिलेटेड है, चाहे जीके के रिलेटेड है, चाहे इंग्लिश के रिलेटेड है, तो हम थोड़ा सा एनकरेज होते हैं, मोटिवेशन मिलती है। तो ये आपको जरूर रिक्वेस्ट है, अगर लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करके बताएं, अगर कोई कमी है तो भी जरूर बताएं कि क्या हमारे लेक्चर में कमी है। तो इतनी रिक्वेस्ट जरूर है भी लेक्चर में ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ शेयर कर दो। तो केवी क्लासेस सरदुलगढ़ पिछले 2-2.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਮਾ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਆਫਿਸ ਤੇ ਜਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, PNB ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਜਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ।